ایسا لڑائی جھگڑا نہیں ہے, چھوٹی موٹی چیزیں تو ہر جگہ ہر پارٹی میں اور گھروں میں بھی ہوتی ہیں. انڈیا میں ایک بہترین قسم کا جلسہ کیا ہے نون لیگ نے, وہاں پہ نون لیگ کو کاؤنٹر کر لیں گی آپ اگر آپ کو پارٹی ٹکٹ ملتا ہے کہ چلیں جی تسی میرا منہ رکھ لو تے تسی جلسے دے وچ چلو, ووٹ جتھے مرضی پا دیا جائے. اور یہ وہاں پہ جلسے میں بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں تو یہاں پہ لایا گیا ہے. زبردستی تو ہو سکتا ہے انہوں نے بھی بلایا ہو پی ٹی آئی کے جلسے میں بھی نون لیگ والوں کو, آپ لوگوں نے بھی جب لاہور میں ہوا. آپ دیکھیں کہ خان صاحب وہ کھڑے غلط کیوں ہو گئے ہیں, کیس بن گیا ہے, وہ یہاں بیٹھ کیوں گئے ہیں, کیس بن گیا. آپ نے بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بڑا وقت گزارا, خان صاحب کو بھی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پارٹی میں, بڑا لیڈر کس کو پایا؟ بے نظیر بھٹو شہید, کوئی شک نہیں اس میں. اس حالات کو سب لوگ جان چکے ہیں اور خان صاحب بتا چکے ہیں. خان صاحب کل کو پھر کہیں گے کہ آرمی چیف نے مجھے کچھ کرنے ہی نہیں دیا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باغی کیوں اور میں ہوں آپ کو ہوسٹ زین العابدین. ناظرین, ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں عمران خان صاحب کی جو سیاسی ہوا ہے وہ بہت تیز ہوئی ہے اور اس ہوا میں بہت سے دوسری پارٹی کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اڑ کر پی ٹی آئی کی جانب آئے ہیں. اسی طرح ایک پیپلز پارٹی کی درینہ ساتھی, بے نظیر صاحبہ کی درینہ ساتھی جناب ناصرہ میو صاحبہ, جو میو برادری کی پہلی خاتون ایم این اے کی کنٹیسٹنٹ ہیں, وہ شامل ہوئی ہیں جناب پی ٹی آئی میں. پیپلز پارٹی کو انہوں نے کیوں چھوڑا, یو کے سے ہوتے ہوئے پاکستان آئیں, یو کے کی پالیٹکس کو بھی دیکھا, پاکستان کی پالیٹکس کو بھی دیکھا. آج ان سے بات کریں گے کہ ایسا کیا نظریہ نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کا, ایسی کون سی حقیقی آزادی وہ چاہتی ہیں جو انہیں یو کے میں میسر نہیں آئی اور یہاں پر وہ سمجھتی ہیں کہ عمران خان صاحب ان کو لے دیں گے. ان سے بات کرتے ہیں. میڈم بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے یہ بتائیں کہ ایسی کیا چیز آپ کو پسند آئی عمران خان صاحب میں, عمران خان صاحب کے مینیفیسٹو میں, جو آپ کو پیپلز پارٹی میں نظر نہیں آئی؟ یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ میرے نظر آنے کی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب کا نظریہ پاکستان ہے, عمران خان صاحب کی سوچ پاکستان ہے, پاکستان کی ترقی عمران خان کی سوچ ہے, اور یہ میں نہیں پورا پاکستان اس بات کو جان چکا ہے. تو اس میں یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی میں سمجھتی ہوں کہ آئی بین آنرڈ کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن گئی ہوں. مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میں اس لیڈر کو فالو کر رہی ہوں جو پاکستان کی سوچ رکھتا ہے, جو پاکستان کے غریبوں کی سوچ رکھتا ہے, جس مقصد کے لیے پاکستان بنا, اسلام کے لیے, لا الہ الا اللہ کے نام پہ پاکستان بنا, اس کو سنبھالنے والا, ریاست مدینہ کی بات کرنے والا اور پاکستان کو اس طرف چلانے والے, سوچ رکھنے والے قائد کے اس کی پارٹی کا میں حصہ بنی. تو وہاں کی جو پی ٹی آئی کی پرانی قیادت ہے, اوبیسلی جب کوئی نیا بندہ آتا ہے تو پرانوں کو کافی ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں, تو نئی جو آپ شامل ہوئی ہیں تو پرانی قیادت کا کیا رویہ رہا, کیا انہوں نے آپ کو اون کیا یا ابھی تک لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہیں جیسے مختلف حلقوں میں چل رہے ہیں؟ نہیں, مجھے ایسی کوئی لڑائی جھگڑے مجھے تو نظر نہیں آئے, اور مجھے یقینی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی تمام رہنماؤں نے ویلکم کیا ہے, اور کوئی ایسا لڑائی جھگڑا نہیں ہے. چھوٹی موٹی چیزیں تو ہر جگہ ہر پارٹی میں اور گھروں میں بھی ہوتی ہیں, تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن پارٹی کے جو رہنما ہوتے ہیں, جو لیڈران ہوتے ہیں, وہ ان کو بیٹھ کے اور افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ, لیکن مجھے اب یہ بتائیں کہ ابھی قصور سے آپ کا تعلق ہے, کھڈیاں میں ایک بہترین قسم کا جلسہ کیا ہے نون لیگ نے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں وہاں پہ نون لیگ کو کاؤنٹر کر لیں گی آپ اگر آپ کو پارٹی ٹکٹ ملتا ہے؟ یقینی طور پہ جی. اور جلسے کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں, پہلے میں وہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ دیکھیں کھڈیاں میں جو جلسہ ہوا ہے, آپ کی شاید نظروں سے گزرا ہوگا کہ وہاں پہ لوگوں کو, دیہاتوں کا جو علاقہ ہوتا ہے نا, وہاں پہ آپ یہ کہہ کے بھی لوگوں کو لے کے جا سکتے ہیں ایک بھیڑ بنانے کے لیے کہ چلیں جی تسی میرا منہ رکھ لو تے تسی جلسے دے وچ چلو, ووٹ جتھے مرضی پا دیا جائے. اور یہ وہاں پہ جلسے میں بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں تو یہاں پہ لایا گیا ہے, ووٹ تو ہم نے عمران خان کو ہی دینا ہے. صحیح. تو یہ وہ سوچ ہے جس کو جگا دیا ہے عمران خان نے. تو عمران خان صاحب نے سوچ کو تو جگا دیا, لیکن اتنے ضمیر نہیں جاگے ان لوگوں کے کہ وہ پی ٹی آئی کے جلسے میں جا رہے ہیں. دیکھیں, ہو سکتا ہے ان کی کوئی رشتہ دار ہے, جیسے میں نے بتایا کہ دیہاتوں میں ایک رواداری تو پائی جاتی ہے, شہروں کی نسبت دیہاتوں میں رواداری پائی جاتی ہے. یہ رواداری اگر الیکشنز میں نظر آ گئی تو آپ لوگ تو رہ جائیں گے وہاں پر. نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں وہاں پہ جب وہ ووٹنگ کے اوپر وہ ہر ووٹنگ بوتھ پہ جب کھڑے ہوتے ہیں نا وہاں پہ, تو آپ کے رشتہ دار بعض دفعہ, کیونکہ میں بھی گاؤں کے کلچر کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں, تو بعض دفعہ آپ کو انکار وہاں پہ بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ بھی ایسی صورتحال ہوگی, اس کے لیے آپ نے کوئی پلاننگ کی ہوئی ہے؟ نہیں, پلاننگ کی اس میں بات ہی نہیں ہے. جب ضمیر جاگ چکا ہے, ووٹ عمران خان کا ہے, تو اندر جا کے جب ووٹ ڈالنا ہے اس میں کون سی ایسی وہ بات ہے کہ جس میں کسی نے زبردستی ہم سے ووٹ ڈلوا لینا ہے. ہاں, وہ علیحدہ بات ہے کہ
के इलेक्शन के जो बाद के रिजल्ट्स में, लेकिन आई डोंट बिलीव ऑन दैट। अब जिस तरह से जो है वो चीज़ें चल रही हैं ना, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन इस तरह के ज़बरदस्ती तो हो सकता है, उन्होंने भी बुलाया हो पीटीआई के जलसे में भी नून लीग वालों को, आप लोगों ने भी जब लाहौर में हुआ तो फिर देखें, ये एक बड़ा, मैं आपको सच बता रही हूँ कि जिस दिन हम मीनार पाकिस्तान के जलसे में जा रहे थे, हमें जगह जगह पे पुलिस ने नाके लगाए हुए थे और हमारी गाड़ियों को रोक रोक कर, मैं खुद अपनी रैली लेकर मुस्तफ़ाबाद से एक बहुत बड़ी रैली लेके और वहाँ से निकली थी जलसे के लिए। ये हमारी सियासी रिवायत है, हम हर दफ़ा, ये आपने टीएलपी के साथ किया, आपके साथ हुआ, नून लीग की आपकी गवर्नमेंट आएगी आप दोबारा करेंगे, ये तो हमारी पॉलिटिकल रिवायत चली। यूके से आपका ताल्लुक़ रहा है, बड़ा अच्छा। यूके की पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? देखें, खान साहब भी हमेशा अब जिस तरह से पूरे बताते हैं कि बाहर के मुल्कों की सियासत, ख़ास तौर पे यूके की जो पॉलिटिक्स है और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, वहाँ पे आइन और कानून की बालादस्ती है। आप देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए जा रहे हैं, क्या कभी ऐसा दूसरे मुल्कों में आपने देखा? अदालतों में क्यों नहीं पेश होते अगर आइन और कानून की बालादस्ती की बात हो तो रहे हैं, अदालतों में पेश हो रहे हैं, फिर नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हो जाते हैं उनके, फिर आगे पुलिस के सामने जो है वो रिप्रेशन करते हैं उनके कारकुनान। तो ये सारे मामलात को आप लोग बाद में कैसे डील करेंगे जब इनकी बेसिस पे केसेस बनेंगे? देखिए, वो जो केसेस हैं, आप देखिए कि खान साहब पे उन्होंने वो खड़े गलत क्यों हो गए हैं, केस बन गया है, वो यहाँ बैठ क्यों गए हैं, केस बन गया है, क्या उन पर वो केसेस हैं जिनके लिए उनको बार बार अदालतों में बुलाया जाता है? क्या आप नहीं जानते? क्या पाकिस्तान की आवाम नहीं जानती? और मैं ये समझती तो हूँ, आपके दौर के भी जानते हैं, राना सनाउल्लाह पे आप लोगों ने चर्च का पर्चा, हीरोइन का पर्चा डाल दिया, इस तरह तो फिर वो जान खुदा को देनी है, लेकिन केस जो है वो राना साहब पे डालना है। तो ये तो सारी पॉलिटिकल, यही तो हम कल्चर की बात कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल कल्चर जो है, ये जब आपकी गवर्नमेंट थी 4 साल, आप लोगों ने चेंज क्यों नहीं किया, तब्दील क्यों नहीं किया? और आप तो तब हो सकता है कि देखिए, हमारी गवर्नमेंट में कोई केस नहीं बने थे, नए कोई केसेस नहीं बने थे, वो केसेस पहले से उनके एक दूसरे के ऊपर केसेस बने हुए थे। वो हीरोइन पहले की पड़ी थी कहीं, वो भी जी पहले की बड़ी हुई थी जी। खान साहब ने किसी के ऊपर कोई गलत केस नहीं किया था, के ऊपर कोई केस नहीं बनाया। अच्छा, मैं ये बता दें कि इससे पहले पीपल्स पार्टी नून लीग पर केसेस बनाती थी, नून लीग पीपल्स पार्टी पर केसेस बनाती थी। वो बनाते थे तब आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा थी? जी थी, हिस्सा थी उसकी। मेरे हिस्सा होने से हकायत को नहीं छुपता। आपने तब कोई बात की पार्टी के जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, उसमें कि ये क्यों आप कर रहे हैं? उस वक्त जी, जब मैं पीपल्स पार्टी में थी, तब जो हमारे स्पोक्समैन थे वो करते थे। मैं ज़्यादातर असल में फील्ड की पॉलिटिक्स करती थी। बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो फील्ड की पॉलिटिक्स नहीं करती, हमें मखसूस नशिस्तों पर तो ख़वातीन बहुत ज़्यादा तादाद में नज़र आती हैं। तो ये कैसा लगता है पॉलिटिक्स करना खातून के लिए? ख़वातीन जो देख रही हैं उनको आप कोई पैगाम देना चाहें? देखिए, पॉलिटिक्स जो है, सियासत जो है, मैं असल में उसको एक इबादत समझ कर करती हूँ और ये मेरा जुनून है। मैंने बहुत ज़्यादा काम एज अ सोशल वर्कर जो है वो यूके में भी किया है, तो मैं समझती हूँ कि मैं एक वॉलंटियर वर्क कर रही हूँ पाकिस्तान में। और मैं बीइंग अ पाकिस्तानी, बहुत साल वहाँ रहने के बाद मेरा दिल चाहता है, मैं बहुत कुछ शायद नहीं बदल सकती, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि अगर मैं इस एक जिस भी हल्के से मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ, मैं वहाँ पे कुछ बेहतरी कर सकती हूँ कंपेयर टू अदर पीपल। आपने बेनज़ीर साहिबा के साथ बड़ा वक्त गुजारा, खान साहब को भी अभी आप देख रहे हैं, पार्टी में ज्वाइनिंग किया आपने, मुझे ये बताएं बड़ा लीडर किसको पाया? बेनज़ीर भुट्टो शहीद, कोई शक नहीं इसमें, बहुत बड़ी लीडर थी, लेकिन आज इमरान खान बहुत बड़ा लीडर है। कंपैरेटिवली अगर आपको नहीं, आप उसको कंपैरेटिवली इसलिए नहीं कर सकते कि शी वाज आल्सो द बिगेस्ट लीडर इन द पाकिस्तान। तो उसके बाद आपको पीपल्स पार्टी में क्या लूप होल नज़र आए? आप जब गवर्नमेंट नहीं थी पीपल्स पार्टी की, तब आप रही पिछले टेन्योर में पीपल्स पार्टी में, अब गवर्नमेंट है, ज़रा मौजें करें, जैसे दूसरे MPs MNAs काम करवाते हैं आप भी करवाएं, अय्याशी करें, आप क्यों अब अपोजिशन की पार्टी में चले गए? आपको जैसे मैंने कहा है कि मैं सियासत कर रही हूँ इबादत के लिए, मज़े करने के लिए, सियासत करने के लिए मैं पाकिस्तान तो कम से कम नहीं आई। यूके नेशनल भी हैं आप? मैं यूके नेशनल थी। अच्छा, नेशनलिटी छोड़ दी आपने? जी, नेशनलिटी मैंने 2013 में छोड़ दी। तो कैसा लगता है पाकिस्तान के लिए जब हालात इतने बुरे हों, किसी अच्छे स्टेबल कंट्री की नेशनलिटी छोड़ना? ये इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या अच्छा लगता है। आपको अपने मुल्क के लिए काम करना अच्छा लगता है तो फिर आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। वो नेशनलिटी है, वो घर है, वो कुछ भी है, आपको छोड़ने में उसका आपका मकसद क्या है?
तो मेरा मकसद ये है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। मैं कर सकूँगी या नहीं ये तो मेरे अल्लाह को पता है, लेकिन हाँ मैं ज़रूर ये कोशिश करती रहूँगी कि मैं जब भी किसी पोजीशन में हूँ मैं पाकिस्तान को बेहतर तरीके से सर्व करूँ। मुझे बताएं कि आप एनए की पॉलिटिक्स करती रही हैं, नेशनल असम्बली के आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया 2008 में, उसके बाद भी, तो अब आप पीपी के इलेक्शंस में भी कंटेस्ट करने जा रही हैं, तो कैसा, ये क्या ख्याल आया आपको कि आप नेशनल से जो है वो सूबाई सतह पर आने जा रहे हैं? इसकी कोई ख़ास वजह नहीं थी असल में। 2018 में नहीं है कि दो इलेक्शन अलग-अलग हो रहे हैं, पहले पीपी की जीत लें फिर एनए में जाएं। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। मेरा असल में जो हल्का था 2018 के इलेक्शन से पहले 2 माह कबल मेरा हल्का चेंज हो गया था, डिलिमिटेशन जब हुई थी। मैंने जो मेहनत की थी एनए की वो उस हल्के में की थी 5 साल। अब वो 2 माह पहले जो है वो हल्का मेरा चेंज हो गया। तो कागजात उधर भी जमा करवा सकते थे आप? हाँ, लेकिन मैं समझती हूँ जहाँ मेरा घर है, जो मेरा होम टाउन है, उसको छोड़कर मैं दूसरी जगह पर नहीं जाना चाहती थी। और जो मेरा 30% हिस्सा बच गया था मैंने वहीं से इलेक्शन कंटेस्ट किया और उसी तरह से उसको कंटिन्यू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा वहाँ से वोट लिया। फिर इलेक्शन गुजरने के बाद मेरे हलके के अवाम ने ये बैठ के मिलके सब लोगों ने फैसला किया कि जब ये हल्का इस शेप में बन गया है तो बाजी आप और हम बेहतर है कि हम जो है वो सूबाई का छोटा इलेक्शन इसलिए लड़ लें क्योंकि छोटे इलेक्शन के लिए जितने वोट दरकार थे उतने तो हमें एनए में मिल गए थे। आपके लिए मार्जिन बढ़ जाए। जी, तो ये और कोई ऐसी वजह नहीं थी। ठीक है, तो ये सिर्फ आखिर में बता दें कि इमरान खान साहब जो हैं, आपका क्या ख्याल है? पहले भी 4 साल लोगों ने उनको देखा, पाकिस्तान 24वें नंबर पे इकॉनमी थी, 48 पे 47 पे चली गई और इस तरह से कर्जे जो है वो शौकत तरीन साहब ने खुद माना कि हमने पाकिस्तान की तारीख के तकरीबन 76% लिए हैं। तो अब क्या बेहतरी आएगी, क्या देख रही हैं आप? ऐसी क्या उम्मीद नज़र आई आपको कि आपने जो है वो पीटीआई ज्वाइन किया है और लोगों के बारे में को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? अगर वो पीटीआई ज्वाइन करें तो क्यों करें? वो इसलिए करें कि इमरान खान इंशाअल्लाह अब 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे और वो अपने पाकिस्तान के फैसले करने के लिए उनको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होगी। जो पिछला टर्न्योर गुजरा उस हालात को सब लोग जान चुके हैं और खान साहब बता चुके हैं। खान साहब कल को फिर कहेंगे कि आर्मी चीफ ने मुझे कुछ करने ही नहीं दिया। नहीं, मैंने कहा ना कि इंशाअल्लाह ताला अब इमरान खान साहब जो हैं वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे। जैसे आज वो अकेले यहाँ पे खड़े लड़ रहे हैं आपकी पूरी पीडीएम के साथ, तमाम इदारों के साथ अकेले खड़े हुए हैं। वो पाकिस्तान उसको लाया गया था। आज जो है खान साहब के साथ 23 करोड़ अवाम खड़े हैं और ये मुल्क किसी फर्द वाहिद का नहीं है, ये मुल्क 23 करोड़ अवाम का है। इसलिए मैं अपने पाकिस्तानी अवाम से ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ इमरान खान का साथ दें और उनको दोबारा इस मुल्क का वज़ीर आज़म हम इंशाअल्लाह लेकर आएंगे और फिर हमारा कप्तान जो है इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाएगा जिसका उन्होंने हमसे वादा किया है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया मैडम, आप तशरीफ़ लाई। जी, तो हमारे साथ मौजूद थी नासरा मेयो साहिबा, जिन्होंने हमें बताया कि ख़वातीन के लिए किस तरह के मौक़े हैं पॉलिटिक्स में और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी में क्या लूप होल्स उन्हें नज़र आए जो वो पीटीआई की जानिब बढ़ी और पीटीआई में वो अपना जो है वो कैरियर परसू करने जा रही हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या दोबारा से इक़्तिदार में आएगी? क्या जो अवाम की उम्मीदें वाबस्ता हो चुकी हैं इमरान खान साहब से, क्या वो उन पर पूरा उतरेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी।